Dear students, viewers and learners, welcome to my YouTube channel Learn English with RK. Once again we are starting our video series with the model will, and I think it is going to be the last model verb. Certain things about model will. The short form of will is apostrophe double L. For example, I will. So instead of saying I will, we can say I'll. He will. Instead of saying he will, we can say he'll. And second thing, the shortened form of will not is won't. Never ever use willn't. Like shall not, shan't, and will not, won't. So these two things very important that I wish to tell you. Now we are going to see the uses of will one by one. First use of will is to show simple futurity. We use will to show simple futurity with second person and third person. Second person means you and third person means I, no, he, she, it, they, and nouns. These are third persons. So with second and third person we use will to show simple futurity. सामान्य भविष्यता. It isn't colored future. इसमें कोई emotion attach नहीं होगा. Plain future होगा. For example, he will visit you tomorrow. He will come to meet you tomorrow. वह कल तुमसे मिलने आएगा, तुम तक विजिट करेगा. तो इट्स अ सिंपल फ्यूचर, एक सामान्य भविष्यता है कि. सेकेंडली शी विल हेल्प हिम, वो उसकी मदद करेगी. सिंपल फ्यूचर है. देयर इजंट एनी इमोशन अटैच्ड विथ द वर्ब और मॉडल वी कैन से. थर्ड एग्जाम्पल, द फंक्शन विल स्टार्ट आफ्टर सम टाइम. कुछ समय बाद कार्यक्रम शुरू होगा. सो वी आर जस्ट शोइंग सिंपल फ्यूचरिटी फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोग्राम और फंक्शन वी कैन से. तो ये सामान्य भविष्यता के लिए. सेकेंड यूज टू शो डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट, विलिंगनेस विथ फर्स्ट पर्सन. ये इनका हम जो है फर्स्ट पर्सन के साथ इतनी चीज़ों का प्रयोग करने के लिए विल का यूज करते हैं. फर्स्ट पर्सन मीन्स आई एंड वी. सो वी शैल सी one example for each thing like determination, promise, and threat and willingness. So first sentence, see, if you want to say determination, I have written only det, that means determination. संकल्प, दृढ़ संकल्प की बात कर रहे हैं अपन. तो I will die but not yield, मैं मर जाऊंगा पर झुकूंगा नहीं. So it's your determination. So you are showing determination, आप दृढ़ संकल्प को व्यक्त कर रहे हैं. तो we are using here will with first person I. Second example, I will help you as much as I can. So you are promising, आप एक वादा कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं कि मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतनी आपकी मदद करूंगा. So I will help you as much as I can. अब यहाँ हम देखिए थ्रेट, धमकी. किसी को धमकी दे रहे हैं कि I will behead you if you don't listen to me or if you don't follow me or if you don't return me my money. मैं तुम्हारा सिर कलम कर दूंगा यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो. You are showing threat, dhamki. So I will behead you. We can use will with we also because we also is in first person. अब देखिए यहाँ पर हम एक willingness, I have forgotten to write here, willingness. इच्छा जाहिर करना है तो भी आप जो है फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ जो है will का यूज करेंगे. See here, we will play a match with them on Sunday. Here you are showing willingness. एक इच्छा व्यक्त कर रहे हैं आप अपनी, एक है ना. So here we are using will with we, first person. So these are the two uses of will. I think you must have got it. Now we are coming on to a third use, that is to express invitation, request, order, inevitability and refusal. Inevitability means अवश्यंभाविता, किसी चीज का होना तय है. अनअवॉइडेबिलिटी वी कैन कॉल इट. वी कैनॉट अवॉइड या वी कैनॉट स्टॉप इट फ्रॉम हैपनिंग. जब किसी चीज को होने से नहीं रोका जा सकता, दैट इज कॉल्ड इनएविटेबिलिटी.
and refusal, inkar, aswikriti. So these are the things we can express using will. So let us see one by one. So we will see the use of will for showing invitation, request, order, inevitability, refusal, like this. So first example is, will you attend my birthday party? Actually यहाँ पर आप किसी को, you are not making a question here, you are inviting someone else to attend your birthday party. So you can say, will you attend my birthday party? So it is an invitation. What is it? It's an invitation. So you are inviting someone. So in such case you can start the sentence with will, which will be an interrogative sentence. Second one, to express request. देखिए हमने would और could के समय भी मैंने चर्चा किया था कि जब हम कोई polite request करने जा रहे होते हैं तो we can begin the sentence using would, could and will also. पर would और could में politeness ज़्यादा होती है in comparison to will, but will also shows request. तो यदि आप request कर रहे हैं, will you dine with us John? क्या आप हमारे साथ खाना खाएंगे John? Will you play with me? Will you spare some time with me? Will you lend me some money please? तो ऐसे request के संदर्भ में you can start the sentence with will. Here it's not a question in real sense. Actually you are saying, please dine with us. This is what the meaning is. If you want to show any order or instruction, so here also you can use will. No vehicle will be parked here. यहाँ कोई वाहन खड़े नहीं किए जाएंगे, so it is an order. It is an order. Or one more sentence, bring me that file. Will you? एक बात याद रखना, जब भी इम्पेरेटिव सेंटेंस यदि कोई इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर को शो कर रहा होता है तो उसके क्वेश्चन टेक में जो है हम विल हेल्पिंग वर्ब या मॉडल का प्रयोग करते हैं. बाकी आपने अन्य जगह देखा होगा, आई नो इंग्लिश, डोंट आई, ही विल कम, वोंट ही. बट यहाँ पर याद रखना वो दैट्स अ डिफरेंट केस. बट इन केस ऑफ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस वी मेक क्वेश्चन टेक यूजिंग will you or won't you. Keep in mind, very important thing. So bring me that file. Will you? वो मेरे लिए फाइल लेके आइए, है ना. क्या लाओगे या क्या नहीं लाओगे? Will you or won't you, both are right. Now we can also use will to show inevitability, unavoidability, जिसका होना तय है. We can't stop that. That will definitely happen. जैसे accidents will happen, दुर्घटनाएं तो होंगी. एक्सीडेंट्स विल हैपन द वे दे हैव बीन हैपनिंग, वो वैसी होंगी जैसी होती आ रही हैं. सो वी कांट स्टॉप देम. सो हियर वी आर शोइंग इनएविटेबिलिटी, अपरिहार्यता, समथिंग लाइक दैट, या असंभाविता, समथिंग लाइक दैट इन हिंदी वी कैन से. ओके. सो वन मोर सेंटेंस, ही विल बी 40 नेक्स्ट ईयर. अरे इस साल 39 ईयर्स का है तो नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली ही विल बी 40. सो he will be 40 next year. Inevitable है, होना तय है उसका, because he is 39 this year. So inevitability को भी हम शो करते हैं using will. अब अगला देखिए, refusal, कोई चीज़ करने से इनकार करना. The car won't start, कार शुरू नहीं होगी. थोड़ा भद्दा लगता है ये कहना कि कार रिफ्यूज़ कर रही शुरू होने में, but the meaning is same. The car won't start, कार स्टार्ट नहीं होगी. रिफ्यूज़ल एक प्रकार का है. या वन मोर सेंटेंस वी कैन टेक, आई वोंट डू इट एनी कॉस्ट, मैं ये किसी भी कीमत पर नहीं करूँगा. यू आर मेकिंग अ रिफ्यूज़ल टू डू समथिंग. सो रिफ्यूज़ल शो करने के लिए हम विल, या इफ इट इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस यू विल यूज विल नॉट. यूज नंबर 4 विच इज़ गोइंग टू बी द लास्ट यूज ऑफ विल, और इस पर हमने पहले भी बहुत चर्चा कर लिया है. देर आर 4 कंडीशनल, 0 कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल. सो वी यूज will and shall also in first conditional. Structure is like this: if plus v1 comma will plus v1. second sentence में we will use either will or shall plus first form of the verb. फर्स्ट कंडीशनल में किसी कार्य के होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, नॉट 100%,
इट मे बी मोर देन 90 और समथिंग लाइक दैट, तो जब संभावना कोई काम के होने की ज़्यादा होती है तो उसको फर्स्ट कंडीशनल की कैटेगरी में रखा जाता है, इस पर हमने चर्चा पहले भी कर चुका है. एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग इट, यू कैन लीव इट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल रीडिस्कस इट. सो इफ इट रेन्स वी वोंट प्ले. सी, इफ प्लस V1, इफ इट रेन्स यदि बारिश होगी तो वी वोंट प्ले या वी विल नॉट प्ले, हम नहीं खेलेंगे. तो इफ प्लस V1 विल प्लस V1, इफ प्लस V1 सेल विल प्लस V1. तो ये फर्स्ट कंडीशनल है. यदि याद रखना, इफ, अनलेस, इनसे शुरू होने वाला वाक्य जो है हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होता है. हिंदी मीनिंग भले इसकी क्या होती है, यदि बारिश होगी तो हम नहीं खेलेंगे. तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे इफ इट विल रेन वी विल नॉट प्ले. रॉन्ग. इफ ऑलवेज टेक्स सिंपल प्रेजेंट. सेकेंड सेंटेंस, इफ यू आर ऑनेस्ट, यदि आप ईमानदार रहोगे, ऑल विल लाइक यू, सभी तुम्हें पसंद करेंगे. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट यूसेस ऑफ द मॉडल ऑक्सिलियरी विल. आई होप थिंग्स मस्ट हैव बिकम क्रिस्टल क्लियर टू वन एंड ऑल. प्रिय छात्रों, वंस अगेन मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे सभी जो वीडियोस को एक एक करके देखें. मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी डाल रखी है. डिटर्मिनर के लिए प्लेलिस्ट है, ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन इंग्लिश के लिए है और मॉडल्स के लिए भी है. तो जिनने अब तक इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तत्काल सब्सक्राइब करें. ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक बूस्ट होगा, मोरल सपोर्ट होगा. और यदि आपका ऐसा मुझे सपोर्ट मिलता गया तो मैं वॉइस, नरेशन, क्लॉज और idioms, proverbs, antonyms, synonyms, one word substitution. So there are so many areas on which I can make videos. So I'll do it if you support me. Thank you very much.